where every story shines under the moonlight. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں کوئی ہے جو اندھیرے میں آ کر لوگوں کی ہانڈیاں چرا لیتا ہے؟ پتہ نہیں وہ انسان ہے یا کچھ اور۔ آئیے پھر ہم مل کر اس راز کو بے نقاب کرتے ہیں۔ ایک خوبصورت ہل ٹاپ پر جہاں ہوا میں گرین ایپلز اور ٹائم کی خوشبو رچی ہوئی تھی، دو بہنیں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھیں۔ ان کا گھر ایسے لگتا تھا جیسے آسمان کے ٹکڑوں سے بنایا گیا ہو۔ صبح کی روشنی آرچڈ کو سنہری رنگ دیتی، سبزیاں اپنی بھاری فصل کے بوجھ سے جھکی ہوتیں اور چکنز چھوٹے سورج کی طرح ادھر ادھر پھرتے۔ ماں باپ صبح سویرے فیلڈز اور باغ میں مصروف ہو جاتے، جبکہ بہنیں ہارتھ اور کچن کو گرم اور روشن رکھتیں۔ بڑی بہن ایلوین ذہین اور پرسکون تھی۔ اس کے بھورے کرلز صبح کی روشنی پکڑ لیتے، وہ سب سے پہلے اٹھ کر باغیچے کو پانی دیتی اور بینز سے باتیں کرتی۔ چھوٹی بہن میرا ہنسی مذاق اور شرارت سے بھری ہوئی چکنز کو دانہ ڈالتی اور ساتھ ساتھ جوک سناتی۔ ان کی زندگی چھوٹی چھوٹی ایڈونچرز سے بھری ہوئی تھی، کبھی چاندنی رات میں ٹوٹی گیٹ کی مرمت، کبھی بھاگا ہوا گوٹ جو ساری وادی گھومتا، یا بٹر بریڈ جو اچانک غائب ہو کر ایک فاکس کے منہ میں ملتا۔ محبت اور یہ چھوٹے چھوٹے کمالات ان کی زندگی کو ایسے لپیٹتے جیسے نرم شال۔ ایک صبح جب ندی کے اوپر کی دھند آہستہ آہستہ ہٹ رہی تھی، ان کی ماں دروازے پر رکی، ہاتھوں سے مٹی صاف کرتے ہوئے اس نے نرمی اور تھوڑی سی سنجیدگی کے ساتھ کہا، بیٹیو، صحن سے پھلیاں توڑ لو اور انہیں پکا لو، ذرا مزیدار بنانا۔ تمہارے والد کو یہ کھانے کے وقت کھیت میں چاہیے، جب تیار ہو جائے تو ان کے پاس لے جانا۔ ایلوین اور میرا نے ایک ساتھ ہاں کر دی۔ ٹوکریاں بازوؤں میں لیے وہ بین کی بیلوں کے بیچ چلنے لگیں۔ ایلوین سب سے موٹے اور تازہ پھلیاں چن کر الگ کرتی، جبکہ میرا پھلیاں نکالتی اور ساتھ ساتھ ہنسی خوشی کوئی دھن گنگناتی۔ جب ٹوکریاں بھر گئیں تو وہ دونوں ندی کے کنارے گئیں، جہاں پانی پتھروں سے ٹکرا کر گنگناتا تھا۔ وہاں انہوں نے بینز دھوئیں، یہاں تک کہ وہ چھوٹی چھوٹی سبز روشنی کی مانند چمکنے لگیں۔ کاٹیج واپس آ کر ایلوین بینز کاٹنے لگے، جبکہ میرا ساس ہلا رہی تھی۔ ٹماٹر، جنگلی ہربز اور ایک سیکرٹ پنچ جس نے کچن کو خوشبو سے بھر دیا۔ بینز ڈال دی گئیں اور تھوڑی ہی دیر میں ایک سوسی سا لنچ تیار تھا۔ انہوں نے اسے لنچ باکس میں رکھا، کپڑے سے لپیٹا اور پیرنٹس کے فیلڈز کی طرف چل پڑیں۔ مگر ہل کی دنیا چھوٹی ٹیمپٹیشن سے بھری تھی۔ آدھے راستے پر میرا کی نظر ایک بش پر پڑی جو رائپ بیریز سے لدی ہوئی تھی، میٹھی اور رس بھری بیریز جو ہاتھوں کو پرپل کر دیتی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایکسائٹمنٹ چھا گئی۔ بس ایک، اس نے کہا، اور دونوں بہنیں بیریز کھانے لگیں۔ لنچ باکس قریب ہی ایک پتھر پر بھول گئی اور ہنسی، رس بھرے چہرے اور وقت سب کچھ بھلا بیٹھے، یہاں تک کہ ویلی میں نون بیل بھی بج گئی۔ اسی دوران ایک دور کے کنگڈم میں ایک پیلس کھڑا تھا جو بالکل فولڈڈ کلاؤڈ جیسا دکھتا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اس کے بڑے ہال میں پریشانی کے عالم میں چکر لگا رہے تھے۔ ان کے سروں پر وہ ٹیپسٹریز جھول رہی تھیں جنہوں نے صدیوں کو گزرتے دیکھا تھا۔ بادشاہ کی پیشانی ایک تھنڈر کلاؤڈ کی طرح تھی۔ کیا اسے معلوم نہیں کہ وہ کون ہے؟ وہ ایک بادشاہ کا بیٹا ہے۔ اس کی بچگانہ حرکتوں سے میں تنگ آ گیا ہوں۔ میرا خیال ہے اب مجھے کچھ کرنا ہی ہوگا۔ وہ اپنے بیٹے پرنس کی بات کر رہا تھا، لیکن اس کی عجیب عادت کے بارے میں تو خود پیلس کے کوریڈورز بھی سرگوشیاں کرتے اور اندازے لگاتے تھے۔ شاید وہ رات کو ڈورز کھلا چھوڑ دیتا تھا تاکہ میوزک اندر آ سکے، شاید وہ لیٹرز انویزیبل انک میں لکھتا، یا پھر شاید چاندنی رات میں پیلس کے روزز کھا جاتا۔ بادشاہ نے کہا کہ بس اب بہت ہو گیا، جبکہ کوئین جو سختی اور نرمی دونوں کو پسند کرتی تھی، خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں وہ سافٹ وری تھی جو ایک ساتھ کھونے اور بدلنے دونوں سے ڈرتی تھی۔ ایلوین اور میرا نے لنچ باسکٹ اٹھایا اور تیزی سے ان کھیتوں کی طرف بھاگیں جہاں ان کے پیرنٹس کام کر رہے تھے۔ ان کی ہنسی راستے کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، پھر دوڑ کی تھکن سے سانسیں تیز ہو گئیں۔ ایک اونچے درخت کے سائے تلے ان کی ماں نے پسینہ پہنچتے ہوئے تھکی مگر محبت بھری اسمائل کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ لنچ لے آئی ہو، اس نے کہا اور باکس پر لپٹی کپڑے کی گرہ کھولنے لگی۔ لیکن جیسے ہی ڈھکن اٹھایا اس کی اسمائل رک گئی۔ اندر نہ سوسی بینز تھیں، نہ کرسٹی بریڈ،
सिर्फ एक कागज का छोटा सा टुकड़ा जिसे निहायत सफाई से तह किया गया था। वो हैरत से ऊंची आवाज में पढ़ने लगी। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना लजीज खाना नहीं खाया। ये किस हसीन हाथों ने बनाया है? सारा खानदान एक दूसरे को हैरानी से देखने लगा। ना कोई नाम, ना क्रम्स, ना कोई निशान, बस वो नोट और सॉस की मध्यम खुशबू, जैसे कोई अभी अभी वहां से गया हो। एलोवीन के जहन में पॉसिबिलिटीज घड़ी की सुई की तरह चलने लगी, जबकि मीरा के सवालात उसकी बेताबी में तेजी से उभर आए। घर लौटते वक्त सब खामोश थे। मीरा सीधी किचन में गई, मगर जैसे ही हांडी का ढक्कन उठाया, खाली, एक कतरा भी बाकी ना था। उसने एलोवीन को बुलाया और दोनों हैरत से एक दूसरे को देखती रह गईं। रात को वो बाग में बैठी सितारों के नीचे फ्रूट खाते और सरगोशी में चोर का जिक्र करते। मुर्गियां भी अंधेरे में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई सीक्रेट छुपा रही हों। आखिरकार वो कमरे में लेट गईं। मीरा ने कहा, हु कुड इट बी? कमाल है। और फिर दोनों सो गईं। अगली सुबह माँ ने कहा, आज फादर के लिए एग प्लांट और पोटैटो सॉस बना दो। बेटियों ने हामी भर ली। मीरा ने बाग से बैंगन तोड़े और एलोवीन ने ज़मीन से आलू निकाले। टोकरी भरकर वो किचन लाईं। हमेशा की तरह एलोवीन ने सुकून से कटाई की और मीरा ने सॉस हिलाया। खुशबू फैल गई। खाना तैयार होने पर वो झूलों पर बैठ गई पेरेंट्स का इंतज़ार करने। लेकिन जैसे ही मीरा अंदर गई, हांडी फिर खाली थी। मीरा दौड़ती हुई पेरेंट्स के पास पहुंची और सब कुछ बताया। माँ और बाप ने परेशानी से एक दूसरे को देखा। बाप ने आहिस्ता कहा, शायद ये किसी शरारती रूह का काम है। ये सुनकर बहनों के दिल में खौफ भर गया। उस रात मीरा ने एलोवीन से कहा कि वो साथ सोए, क्योंकि वो अकेली रहने से डर रही थी। सुबह माँ ने हुक्म दिया, आज कैरेट और एग सॉस बनाना। दोनों ने मान लिया। मीरा ने बाग से नारंगी गाजर निकाली और एलोवीन ने मुर्गी खाने से ताज़ा अंडे उठाए। किचन में मीरा सॉस हिलाती रही, मगर इस बार उसके दिल में एक प्लान था। खाना तैयार होते ही वो आहिस्ता से किचन की कबर्ड में छिप गई और इंतज़ार करने लगी। कमरा खामोश था। फिर अचानक हल्की फुटस्टेप्स सुनाई दी। एक साया नमूदार हुआ, लंबा कद, काला क्लोक ओढ़े, चेहरा हुड में छिपा हुआ। वो दबे कदमों से हांडी तक गया और सॉस लंच बॉक्स में डालने लगा। मीरा की आंखें खुल गईं। हाथ में भारी बेलन था। उसने क्लोक्ड फिगर के सर पर जोर से मारा। वो लड़खड़ाया और मीरा चीखती हुई एलोवीन को बुलाने लगी। अचानक एलोवीन दौड़ती हुई आई। सांस फूले हुए मीरा ने फर्श पर पड़े वजूद की तरफ इशारा किया। दोनों बहनें झुक गईं। सांस बेतरतीब थी। कांपते हाथों से मीरा ने उसके सर से काली हुड हटाई और फिर उसकी सांस रुक सी गई। वो कोई आम चोर ना था। उनके सामने एक नौजवान था, निहायत हसीन। लालटेन की रोशनी में उसकी रंगत दूध की तरह गोरी, माथे पर गिरते घुंघरियाले बाल और चेहरे के तराशे हुए मगर नर्म खदोखाल किसी शहजादे जैसे। बेहोशी में भी उसके चेहरे पर एक वक़ार और दिलकशी थी जिसने दोनों बहनों को हैरानो शशदर कर दिया। वो जिंदा है, एलोवीन ने आहिस्ता से कहा। उसकी उंगलियां उसकी नब्ज पर टिकीं। मीरा ने घबराकर निगलते हुए कहा, जिंदा हो या नहीं, ये चोर है, इसे बांध दो। एलोवीन ने सर हिलाया। दोनों बहनें उसके बेजान जिस्म को घसीटती हुई बाहर ले गईं। बार्न में एलोवीन ने मजबूत रस्सी से उसे कुर्सी पर कसकर बांधा। मीरा उसके सामने खड़ी थी, चेहरा सफेद मगर आंखों में हिम्मत, हाथ में बेलन। उसने एक छोटा जग उठाया। पानी के चंद कतरे उसके चेहरे पर छिड़के। पहले तो वो हल्का सा जुम्बिश हुआ, फिर आहिस्ता से उसकी पलकें खुलीं और लम्हा ठहर सा गया। उसकी आंखें ऐसी हसीन कि जैसे उनमें कोई छुपा हुआ जहां बसा हो। वो मीरा को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। एक पल को मीरा सब भूल गई, डर, गुस्सा, सब। फिर उसने आंखें बंद कर लीं, सर एक तरफ झुकाया जैसे बेहोश हो। मीरा ने रस्सी को जोर से पकड़ा, आहिस्ता कहा, ये जाग रहा है, मुझे पता है। शाही महल में कंप्लीट साइलेंस छा गया था। संगे मरमर के फर्श पर बादशाह और मलका बेचैनी से वॉक कर रहे थे। उनका बेटा शहजादा कई दिन पहले हंटिंग पर गया था, मगर वापस ना आया। सर्वेंट सरगोशियां कर रहे थे, मैसेंजर्स हर तरफ भेजे गए, मगर कोई खबर नहीं मिली। मलका खिड़की के पास क्वाइटली रो रही थी, जबकि बादशाह के चेहरे पर फिक्र की लकीरें गहरी हो गईं।
दूसरी तरफ पहाड़ी के ऊपर छोटे से घर में भी एक हैवी साइलेंस थी। जब फैमिली खेतों से वापस आई और बेटियां घर में ना थी तो पैनिक फैल गया। वो उन्हें पुकारते रहे मगर कोई जवाब ना आया। फिर बाड़े से एक फेंट आवाज सुनाई दी। वो दौड़े और जो देखा इट वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन। मीरा एक बंधे हुए क्लोक्ड मैन के पास खड़ी थी। बाप ने घबराकर पूछा, मीरा, एलोवीन, ये सब क्या हुआ? मीरा ने सब कुछ बताया, स्टोलन फूड, चेस और फिर उसे बांधने की बात। वो आदमी नीम बेहोश सा बोला, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ? लगता है इसकी मेमोरी चली गई है। तो फिर यहीं रहेगा बाबा, हमारा स्लेव बनकर फील्ड्स में काम करेगा। वो क्या होते हैं? मैंने कभी नहीं देखे। वो आदमी हैरानी से बोला। अगली सुबह नरम धूप खीरों के खेतों पर बिखरी हुई थी। मीरा ने उसे बाग की तरफ ले गई। झाड़ियां निकालो और मिट्टी नरम करो, उसने कहा, उसे डिगर पकड़ाते हुए। वो उलझन में पड़ गया, जैसे कोई अनजान हथियार देख रहा हो। मीरा हंस दी। अरे वाह, तुम्हें तो ये पकड़ना भी नहीं आता। आखिर तुम हो कौन? उसने नजरें उठाई बालों के नीचे से चमकती आंखों के साथ। मैं उसका आशिक हूँ, वो आहिस्ता बोला, जो दुनिया का सबसे मज़ेदार खाना बनाती है। मीरा के गाल गुलाबी हो गए। उसने जल्दी से रुख मोड़ा। प्यार से उसने उसे सिखाया कि ज़मीन कैसे खोदते हैं, नरम मिट्टी कैसे बनती है और ताज़ा खीरा कैसे तोड़ते हैं। वो उसे खामोशी से देखता रहा, जैसे हर हरकत में कोई जादू हो। कुछ देर बाद उसने नरमी से कहा, अगर तुम आज बीन्स बना दो तो मैं दुगनी मेहनत करूँगा। मीरा ने हंसते हुए कहा, फिर तुम्हें तुम्हारी बीन्स ज़रूर मिलेंगी। दोपहर तक सारा घराना बरगद के दरख्त के नीचे जमा था। स्पाइसी बीन्स की खुशबू पूरे माहौल में फैली हुई थी। वो अजनबी आदमी जो अब मिट्टी से अटा और थका हुआ था, बच्चों की तरह खुशी से खाना खा रहा था। शाम को मीरा की माँ ने आवाज़ दी, मेरी बहन शहर से आ रही है, उसका रूम तैयार करो और कुछ खास कुक करना। मीरा ने सर हिलाया, फिर नज़र उस आदमी पर गई जो आंगन के कोने में चुप बैठा अपना बाजू पकड़े था। वो बहुत थका हुआ और नाजुक लग रहा था। मीरा के दिल में हल्की सी उदासी उतर गई। चुपचाप वो किचन में गई, चाय बनाई और उसके पास ले आई। वो ऊपर देखने लगा, नर्म लहजे में बोला, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और तुम्हारे हाथ बहुत प्रेशियस हैं। मीरा का दिल जोर से धड़का। उसने कप रखा और शर्माते हुए भाग गई। रात को खाला आ गई, रंगीन कपड़ों में, हंसती मुस्कुराती। वो मीरा के लिए मिरर एम्ब्रॉयडर्ड शॉल और आलोवन के लिए सुनहरे धागे वाली फ्रॉक लाई थी। बैठते हुए खाला ने गहरा सांस लिया। शहजादा अभी तक मिसिंग है। मलिका का दिल टूट गया है। मैंने मिन्नत की कि बस 2 दिन के लिए यहाँ आ जाऊं ताकि वो थोड़ा आराम करे। वो आदमी जो दरवाजे के पास खामोश बैठा था, यकदम सुन्न हो गया। उसकी आंखों में एक साया सा उतरा। वो आहिस्ता से उठा और बगैर कुछ कहे वहां से चला गया। अगली सुबह मीरा को एहसास हुआ कि वो चला गया है। वो उसे ढूंढती रही, खीरों का बाग, बाड़ा, फलियों का खेत, गोभी की क्यारियां, मगर वो कहीं नहीं मिला। हर कदम के साथ उसका दिल और बोझल होता गया। दिन गुजरते गए। मीरा एक खामोश साया बन गई, चुप, उदास और खोई खोई सी। एल्विन अपनी बहन की हालत देखकर फिक्र में डूब गई। फिर एक दिन गांव में एक रॉयल अनाउंसमेंट गूंजी। महल में कुकिंग कॉन्टेस्ट होगा। जो सबसे मजेदार सॉसी बीन्स बनाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। एल्विन ने नरमी से कहा, जाओ मीरा। मीरा चंद लम्हे रुकी, फिर बहन की आंखों में हौसला पाकर उठ खड़ी हुई। उन्होंने इंग्रेडिएंट्स तैयार किए, साफ लिबास पहना और ग्रैंड पैलेस की तरफ रवाना हो गई। अपने स्टॉल पर मीरा ने कुकिंग शुरू की। उसके हाथ मजबूत थे मगर दिल कांप रहा था। खुशबू फिजा में फैल गई, यादों जैसी गर्म और मीठी। और कहीं दूर कोर्टयार्ड के पार 2 मानूस आंखें उसे खामोशी से देख रही थीं। मीरा खामोशी से खाना पका रही थी। हाथ मजबूत थे मगर दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने गरम गरम सॉसी बीन्स चांदी की डिश में डाले और ऊपर से हरी मिर्चें और पुदीने के पत्ते सजा दिए। खुशबू पूरे कॉन्टेस्ट हॉल में फैल गई, जैसे कोई भूली बिसरी याद लौट आई हो।
एक रॉयल कुक आया और डिश उठाकर रॉयल चैम्बर ले गया, जहां शहजादा खुद इंतजार कर रहा था। वो लंबी खिड़कियों की तरफ पुश्त किए खड़ा था, अब शाही पर्पल और वाइट लिबास में। फर्श पर पड़ती रोशनी उसके हनी ब्राउन बालों में चमक रही थी। जब वो पलटा तो कुक लम्हे भर को रुक गया। वही था, स्ट्यू थीफ। वो कुर्सी पर बैठा, चम्मच उठाया और बीन्स चखीं। उसके होंठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट आई, सुस्त, याद भरी, जैसे वो जायका नहीं कोई एहसास चख रहा हो। फिर उसने आंखें खोलीं, आहिस्ता से कुछ कहा और एक तहशुदा नोट नौकर को दे दिया। नोट मीरा के हाथ में आया। उसने देखा, सांस रुक गई। वही हैंड राइटिंग, वही अल्फाज। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कभी इतना लजीज खाना नहीं खाया। कितने हसीन हाथ हैं जिन्होंने ये बनाया। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। अभी वो कुछ सोच ही रही थी कि एक खादिम आया और बोला, शहजादा आपको बुलाते हैं। वो सुनहरी दरवाजों से गुजरती हुई एक रोशन कमरे में दाखिल हुई। वो शख्स दीवार की तरफ मुंह किए खड़ा था। जब पलटा, मीरा के आंसू खुद बहने लगे। तुम मुझे चाहते ही नहीं, तुम मुझे छोड़ गए। देखो मैं क्या बन गई हूँ। उसकी आवाज टूट गई। शहजादा आगे बढ़ा, नरमी से उसका हाथ थामा। मेरी बिलविड, तुम नहीं जानती मैं तुम्हारी बगैर कैसे जिया। वो उसे बादशाह के पास ले गया। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, मेरा बेटा हमेशा एक अजीब आदत का कैदी रहा है। जहां से जायकेदार खुशबू आती वहां से खाना चुरा लेता, मगर आज उसने वो लड़की पाली जिसके हाथों में असल जादू है। तुम खुशकिस्मत हो मेरी बच्ची, मेरा बेटा तुम्हें अपनी प्रिंसेस बनाना चाहता है। कुछ हफ्तों बाद शहजादे पहाड़ी कुटिया पर आया, जो पहले से भी हसीन लग रही थी। मीरा अपने वालिदैन और एलोइन के साथ खड़ी थी। हवा में हंसी घुल गई। जब शहजादे ने उसका हाथ मांगा, सब मुस्कुरा उठे, जैसे उन्हें वो दिन याद आ गए जब स्टू थीफ ने उनकी जिंदगी बदल दी।